मैं रामचंद्र जोशी जी के पास जाऊं। जोशी साहब सुनिएगा, बाहर संसद के बाहर भी राहुल गांधी ने कहा, ये सुनिए, मैं पे करता हूं सवाल, थोड़ा सा है उसका, 2-2.5 मिनट का है, सुनिए। Story started a few days ago when the issue of that book came, the Naravane book. And the government didn't want me to discuss that at all. And so they stalled the house. They didn't let me speak. That happened 3 or 4 times. In that they said that I cannot, first they said that I cannot quote a book. Then I said I'm not quoting a book, I'm quoting a magazine. Then they said you cannot quote a magazine. Then I said I'll speak about it. Then they didn't want me to speak about it. They also said, Defense Minister said falsely that the book has not been published. In fact, the book has been published and we've got a copy of it also. So that is one big issue. Not allowing the LOP and the entire opposition to speak in the President's address. Second issue is one of their members spoke quoting books, multiple books, and spoke very vile stuff, and nothing was said. So we don't like the fact that they can say whatever they want, whenever they want, and the opposition cannot. Third issue is suspension of our members. And final issue which we are very disturbed about is this idea that has been floated that members are going to threaten the Prime Minister. There's no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. And he's still scared because he cannot face the truth, right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And I also mentioned that, look, if somebody said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that, right? So that's basically what's happened. Now the agreement is that we'll be allowed to say, tomorrow we'll be allowed to say these points. And then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen. But now let us see what the government says. My personal, please. My personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the House because he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step, right? And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed, and the government doesn't want to do that. Thank you. ये था प्रियंका गांधी और सुनाता हूं मैं, रामचंद्र जी फिर इकट्ठे ही आपसे लेता हूं। प्रियंका गांधी और सुनिए। स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला MP हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की, उनमें से किसी को आप देखिए सब सीरियस लेडीज़ हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके PM साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर उसके बाद सफाई स्पीकर दे रहे हैं उनके लिए, तो गलत बात है ना। जोशी जी ये है सीन है पूरा का पूरा। आप देखिए राहुल गांधी साफ कह रहे हैं FIR करा दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए, आप कुछ भी गढ़िएगा, कुछ भी बताइएगा देश को। ये क्या है, क्या जिस तरह का दृश्य है कि LOP को बोलने ही ना देना किसी भी लेवल, उसका तो अधिकार है। जैसा अभी कह रहे थे रवीन जी, हम लोग देखते हैं कि चाहे सदन का नेता जब खड़ा होता है तो वो अपने अधिकार से बोलता है, और अनेक बार हमने देखा कई बार सदन का नेता बैठता है जब LOP खड़े होते हैं इंटरवीन करने के लिए। क्या रहा है, ये किस तरफ है मामला? क्या ये मैं जो कह रहा था अपने ओपनिंग रिमार्क में, ये क्या घोषित, देखिए संजीव जी जी सर। संजीव जी, अभी रवीन जी ने इसके लोकसभा के संसद के विगत इतिहास में थोड़ा सा प्रकाश डाला। देखिए ओम बिरला 18वें स्पीकर हैं सर, यानी
मावलंकर सीट से लेकर के और ये 18, और कम से कम मैंने 25-31 साल तो मैंने संसद को कवर किया, विधानसभाओं को भी कवर किया। मेरी ज्ञात इतिहास में जितने मेरी थोड़ी बहुत जो चेतना मुझ में बची है, ऐसा मैंने दृश्य कभी नहीं देखा। यानी अपोजिशन के भी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लीजिए, इंद्र कुमार गुजराल या देव गौड़ा, यानी अपोजिशन के भी एमपी हुए हैं, यानी कहने का मतलब गैर कांग्रेसी एमपी भी हुए हैं, पीएम हुए हैं, उनकी सरकारें चली हैं, उनके स्पीकर रहे हैं, जैसे बाल योगी रहे, आपके मनोहर जोशी रहे, जितना सुमित्रा महाजन रही 2 बार। यानी ऐसा दृश्य तो कभी भी मैंने नहीं देखा, ना सुनने में आया। देखा क्या, सुनने में भी नहीं आया कि अपोजिशन की महिलाएं, सांसद महिलाएं प्रधानमंत्री के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, उन पर हमला कर सकती। ये अपने आप में संजीव जी, ये बचकाना उपास्पद है, बड़े छिछले किस्म पर आप कहाँ ले जा रहे हैं संसद को। मेरा ये मानना है संजीव जी कि इनके ये इत्तेफाक नहीं है, ये अकस्मात नहीं हुए, एक पूरी योजनाबद्ध ढंग से संसद को ठप रखना, प्रतिपक्ष को बिल्कुल बोलने नहीं देना, इसके पीछे उनकी एक कोई भाजपा की एक दूरगामी रणनीति काम कर रही है। क्योंकि देखिए इस समय 2-3 बातें हुई कि अभी जैसा कि कहा भी गया कि मोदी जी एक तो फाइल में फंस गए, पिस्टन की फाइल में फंसे हुए हैं, वो सबसे बड़ा, उससे ये तो हो गया कि वो भयानक रूप से सवालों के घेरे में आ गए। एक उनकी छवि जो धूल दूसरी हुई, पहले ये माना जाता था कि साहब बहुत ही अच्छे हैं और कर्मठ हैं, फलाना दिखाना है, वो अब समाप्त हो गई। अब उसको बनाए रखने के लिए क्या करना है, फिर दूसरा कि साहब हम तो राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, देश की रक्षा करना ही हमारा सब कुछ है। तो भैया नरवणे जी जो सेनाध्यक्ष थे, उनका जवाब दे दीजिए, अब तो किताब भी छप गई, उसको क्या दिक्कत। लेकिन वहां सबसे बड़ी जो लीडरशिप की क्वालिटी जो नरेंद्र मोदी में होनी चाहिए, मैं लगातार इस बात पर कह रहा हूं कि मैं इनको राजनेता तो बहुत बड़ी बात है, नेता भी नहीं है, ये बहुत ही मतलब सतही किस्म के, जिनमें एक पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल कैरेक्टर होना चाहिए, वो नहीं है। मैं 71 में किस तरह से इंदिरा गांधी ने, मैंने उसको तो मैंने कवर ही की, इंडो पाक वार को कैसे उन्होंने सामना किया संसद के अंदर और संसद के बाहर। और आप ये आपने ये बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर आपने कह दिया जो उचित समझो करो। अरे लीडर आप हैं क्या, यहाँ पर क्या आर्मी का शासन है पाकिस्तान की तरह? मैं पूछना चाहता हूँ मिस्टर नरेंद्र मोदी से डायरेक्टली, संघ से भी पूछना चाहूंगा कि क्या आप पाकिस्तान इसको बनाना चाहते हैं जहाँ की 1956 से लेकर लगातार आर्मी राज कर रही है? तो क्या आपका आर्मी क्या, फिर तो कह दो कि हाँ यहाँ पर डिक्टेटरशिप हो गई, तो आर्मी के उसमें सौंप दो। आपने किसी का आर्मी जैसा डिसीजन ले वैसे को जो उचित समझे करे। अरे पॉलिटिकल लीडरशिप को बताना होता है कि आर्मी कहाँ से, आर्मी तो रणनीति तय करती है लड़ने की, लेकिन आदेश तो पॉलिटिकल लीडरशिप रहती है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी के अधीन रहती है आर्मी। हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो मैं उस पे आ रहा हूँ सर कि हाँ नहीं, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्ष देश को कमजोर कर रहा है। कमजोर कौन कर रहा है देश को? ये सब होके आप कमजोर कर रहे हैं या विपक्ष कमजोर कर रहा है? देश किस बात से कमजोर होता है? या सेना, आपके पास पर्याप्त सेना नहीं है, सेना की दृष्टि से आप कमजोर होते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप में संकटग्रस्त है, फाइनेंशियली आप कुछ नहीं। राहुल गांधी यानी प्रतिपक्ष के नेता के पास क्या है बुनियादी, वो किस रूप में आपको कमजोर रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता एलओपी कि भाई आप ऐसा है, ये किताब अब तो सामने आ गई, इसको कैसे आप झुठला सकते हैं? पहले तो कह दिया सब किताब नहीं है और गलत है और चलिए मान लिया पहले दिन, दूसरे दिन तो उन्हें किताब मिला करके दिखा दी। आपने क्यों नहीं ऐसा किया?
तो इसका मतलब ये है कि आप स्वयं बहुत ही डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं। सबसे जो खतरनाक बात है वो ये कि आप ये ओम बिरला जी का ये कहना कि साहब उन पर हमले की आशंका थी, उनको कांग्रेस की कोई महिला कर सकती थी। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि ओम बिरला जी, आप दूसरी बार सभापति अध्यक्ष बने हैं, आपको इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि आप कम से कम एफआईआर दर्ज कराते। वो कौन सी महिला है, चाहे वो कांग्रेस की हो या दूसरी दल की हो, वो कौन सी महिला है? अच्छा, फिर आपके पास ये सोर्स कहाँ से खबर आई? आप उसको सामने रखिए, सामने रखिए कि साहब हमारी ये है। जैसा कि अभी रविंद्र जी ने कहा इंटेलिजेंस, वहां मैं तो रहा हूँ ना कि मेरे तो कई लोग दोस्त थे आईबी के लोग बतलाते थे कि ये वो एक अलग किस्सा, मैं नहीं जाऊंगा उसमें। लेकिन साहब कि ओम बिरला जी आप अध्यक्ष हैं, ये तो आप बता ही सकते थे कि सब किन सोर्स से आप तक ये खबर पहुंची, उसको आप बताइए। पॉइंट आउट की साहब इससे कौन सी है। और अब तो ये भी स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की, तो कौन है उसका नाम लीजिए और एफआईआर कराइए पार्लियामेंट्री पुलिस स्टेशन में जा करके। जब आपकी पिछले पिछले उस समय याद है कि इनका जो थे ना उड़ीसा के जो एमपी, और उन्होंने एक सारंगी एक कौन उनको उन्होंने एफआईआर कराने बीजेपी उन्होंने उन्होंने इस पर राहुल गांधी पर हमले की काम, ये मुझ पर जानलेवा हमला हुआ। तो भैया फिर जब आप उन्होंने करा दिया तो लोकसभा में प्रधानमंत्री के मामले में आप क्यों खामोश हैं? इसका मतलब आप चिंतित नहीं है। फिर दूसरा प्रधानमंत्री की क्वालिटी पे आना चाहिए। चलिए, लोकसभा के स्पीकर ने खुद को कह दिया, तो आप प्रधानमंत्री आप खुद भी जज करिए, और अगर लीडर हैं तो सामना करिए, जैसे नेहरू जी सामना करते थे। मैंने अभी पढ़ा नहीं, इसका मतलब ये आपने एक बार जब पंजाब गई तो सब आपने चुनाव के समय कह दिया मुझे हमला हो सकता है। कभी आप गोवा में कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। अरे यार, तुम आप प्रधानमंत्री हो, ये डरपोक हो। तो अगर आप लोकसभा में ही डर जाते हैं तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पर रहने का। और कैसे कि लीजिए साहब, मेरे तो ये एमपीज हैं, ये सब लोकसभा में मेरी जान को खतरा है, बेहतर है कि मैं नेता पद से त्याग पत्र देता हूँ और जाता हूँ। यार कम से कम इतना तो कम अपना दिखाओ। लेकिन आप वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी इसकी है कि आपको वो अमेरिकन खाना है और हर जगह आपका नाम आ रहा है, और जगह इस्तीफा दे दिया है और आप खामोश हैं। आपने रिएक्ट तक नहीं किया। कल की बात है, आपके ट्रम्प महाराज कहते हैं कि मैं उनका राजनीतिक कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता। कल ही का है, एक सब तो ग्रेट कहते हैं, दूसरी सब बर्बाद कर। तो आप उसका जवाब नहीं देते। अगर आपने थोड़ा सा भी पुरुषार्थ होता तो कहते कि मिस्टर ट्रम्प, किस ढंग से आप मेरे को बर्बाद करेंगे पॉलिटिकली, मैंने क्या किया है, देश की जनता को बताते। आप क्यों नहीं मुखातिब होते देश से? अब छोटे छोटे काम में तो हो जाते हैं। अब जब दिखाइए आप ये डील, कौन सी डील हुई है, इसके बारे में स्पष्ट करिए। सबसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना इनका कोई लंबा गेम है वो बीजेपी और संघ परिवार का, कि वो देश को कहां ले जाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हम लोकतांत्रिक चुनाव से तो कुछ नहीं कर सकेंगे, इसको पूरा ठप्पी कर दिया जाए संसद को, इसके बाद फिर नई ढंग सोचा जाए। कोई लंबा गेम, लंबी रणनीति है, ऐसा मुझे आशंका है, और उसी रणनीति के तहत ये सारा काम हो रहा है। बहुत सही, बहुत सही। कोई लंबा गेम है, कोई रणनीति है। मैं जोशी जी, मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं। मैं हमारे जो संघ प्रमुख हैं, आरएसएस चीफ हैं, वो इकबाल मस्तानी जी के शहर मुंबई माया नगरी में हैं। वो आज भी थे, परसों से हैं, और हम वहां कई सीन निकल रहे हैं अलग अलग। और आज उन्होंने बड़ी अजब गजब बात कही, जिसपे बड़ा उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो वीर सावरकर साहब, भारत रत्न उनको दिया जाए तो भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा। और देख रहे हैं आप, तीन से कई चीजें चल रही हैं। बुलाया गया सलमान खान को या फिल्म स्टार्स को, तमाम। क्या कहेंगे ये कि वीर सावरकर को? नहीं, सुना नहीं आपका सवाल, आया नहीं मुझ तक। अब तक आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है?
मेरी सवाल आवाज आया पहुंच नहीं। रही? आवाज हैं? पहुंच रही मेरी? आवाज अब पहुंच आई, रही? हाँ बोले। नहीं, मेरा सवाल हाँ ये था, जो जी जी आरएसएस जी। में जो है डॉक्टर मोहन भागवत, वो माया नगरी मुंबई में है, जहां हमारे इकबाल जी बैठे हैं, जहां वहां 3 दिन से चल रहा है, अलग अलग सीन निकल रहे हैं कि कभी वो जी सलमान खान का पहुंचना, फिल्म हाँ हाँ स्टार्स का जाना। कल भी उनकी कुछ बातें आई थी कि मुझे हाँ कहें तो 1 सेकंड में मैं छोड़ दूंगा, और मुझे संघ ने कहा है आप कंटिन्यू करिए, 75 वाली बात तमाम। और अब आज उन्होंने कहा है कि वीर सावरकर हाँ। को यदि भारत रत्न दे दिया जाए, सम्मान बढ़ेगा उस पद, इस सम्मान का, भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा। क्या है ये टिप्पणी आप? देखिए, पहली बात तो ये मोहन भागवत जी, पहले तो उन्होंने खुद बहुत पहले कहा कि मैं जैसे ही 75 का हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। अब वो अपनी बात को ही, अपने शब्दों को चबा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक संघ जाएगा तब तक मैं रहने को तैयार हूँ। वैसे तो मैं सेवा तो हमेशा करता हूँ। तो एक बात तो साफ हो गई कि अब वो 75 वर्ष के बाद किसी भी, क्या है वो, मार्गदर्शक मंडल उसमें जाने वाली नहीं है। इसका फायदा नरेंद्र मोदी को जी को भी मिल गया है कि अब वो भी आराम से, दोनों आराम से रहे। अब जब तक, जहां तक सवाल है सावरकर जी, सावरकर जी को अगर भारत रत्न, वैसे उनकी मूर्ति तो लगी हुई, कुछ फोटो लगी हुई है संसद के अंदर, जो लग गई थी, लेकिन अगर मान लीजिए उनको भारत रत्न दे दिया जाता है, तो फिर तो आपको बहुत सी चीजें बदलनी पड़ेंगी, आपकी पूरी परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी सब चीजों की। शहादत की भी बदलनी पड़ेगी, अहिंसा और हिंसा इसकी भी बदलनी पड़ेगी, राष्ट्रवाद की बदलनी पड़ेगी। और फिर ये है कि ये भी करना पड़ेगा कि 30 जनवरी 1948 को जो गांधी जी की हत्या हुई, वो ठीक ठाक एक तरह से आप उसको व्यक्त कर देंगे धीरे धीरे कालांतर में जाकर के। इसके एक खतरा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि संघ एक जो चल रहा है, बीजेपी जो कर रही है, एक लंबे योजना के तहत कर रही है, चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो। देखिए, जैसा कि अभी रमेश जी भी कह रहे थे कि आज इस समय तो मेरी नजर में बीजेपी, संघ ने और बीजेपी ने अपने तमाम नकाब उतार दिए हैं, एक एक करके उतार दिए। अब वो इस पे आ गए कि हमको किसी भी ढंग से सत्ता में रहना है। अब देखिए, आपने देखा कि ये भी इत्तेफाक है कि जगदीप धनखड़ भी पक्षपात पर उन पर जबरदस्त आरोप लगा और वो पक्षपाती कोई भी। ठीक यही स्थिति थी ओम बिरला की, और मजे की बात है दोनों राजस्थान के, हालांकि ये भी इत्तेफाक है दोनों नहीं, मुझे राजस्थान के। लगता है, जोशी जी जो राज्यसभा में स्थिति है, राज्यसभा में सीन वही है। वहां भी देखिए, मैं देख रहा था सुबह भी, कल भी देखा, पहले भी देखा, नहीं नहीं, नहीं अब बोल रहे, वो सभापति महोदय जो है वो बोलने ही नहीं देते। नेता विपक्ष नहीं, खड़े होकर उनको नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस समय के जो वर्तमान सभापति हैं राज्यसभा के, वो तो ठेठ खांटी संघ के हैं। जगदीप धनखड़ तो बाद में आए, लेकिन जी ओम बिरला पूरे खांटी संघी हैं। लेकिन दोनों, लेकिन मैं यहाँ एक बात याद दिलाना चाहूंगा, रविंद्र जी आपको भी याद होगा, 2006 में सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश काराट थे और उन्होंने सोमनाथ चटर्जी से कहा था आप रिजाइन कर दीजिए। सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि मैं पार्टी का इस समय अध्यक्ष नहीं, पार्टी का सदस्य नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ संसद का। मैं यहाँ उस पक्षपात की बात दिला रहा हूँ ओम बिरला जी को, जो दूसरी बार बने हैं। अरे कम से कम सोमनाथ चटर्जी की परंपरा को याद रख लीजिए। उनको उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और वो लोकसभा से और इसके अध्यक्ष पद से, और इसके बाद उनको फिर बाद में पार्टी से निकाल दिया। देखिए इसे बोलते हैं तर्स था। अगर आपको, लेकिन हमारे ओम बिरला जी तो पूरा, जैसे कि आपने डिक्टेट करके आ रहे हैं, जैसा ऊपर कह दिया गया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गेम का खेल है, हिस्सा है। और ये हो सकता है आने वाले दिनों में भारत जो है, देश हमारा बहुत ज्यादा संकटग्रस्त हो जाए, क्योंकि बुरी तरह से ये फंसते जा रहे हैं हर मोर्चे पर, चाहे राइट ट्रंप सर, के साथ हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि संघ की भी जो वो छवि थी, लेकिन मैं यहाँ अंत में एक बात समाप्त करना चाहूंगा कि कल मैं एयरपोर्ट से लौट रहा था और टैक्सी वाले से बात हुई,
तो टैक्सी वाले ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि देखिए साहब, अखबारों में और जो गोदी मीडिया के चैनल हैं उसमें तो कहीं कुछ नहीं आ रहा कि वो तो मोदी जी साफ है। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया में से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये पिस्टल फाइल में किस तरह से मोदी जी कर रहे हैं। उनकी रंगीन जिंदगी का हिस्सा अब हमको उजागर हुआ है, इसलिए अब हम समझते जा। देखिए राइट, नहीं सोशल देखिए वही मैं मीडिया बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जोशी, तो ये बिल्कुल यही था कि वो छुपेगा नहीं कटु है तो ओपन। जी, कटु सत्य है ये। और इसके जी, इतिहास जो है, जो मेन लाइन का जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, उसको भूलेगा नहीं, याद रखेगा कि तुमने बिल्कुल, संपूर्ण जनता के साथ विश्वासघात किया।